भी और अपना भी। आई डोंट नो व्हाई नहीं पढ़ना है, बोल दो नहीं पढ़ना है, हम भी बता देंगे प्रिंसिपल मैम को कि 10th को नहीं पढ़ना है मैम, अपने आप से ही पढ़ लेते हैं, जो पढ़ना होगा वो ठीक है, मुझसे नहीं पढ़ना है, मतलब मेरा टाइम बर्बाद मैम करते 10th हो। में कुछ लोगों को नहीं पढ़ना है। हाँ 10th में कुछ लोगों को नहीं, कुछ हाँ, लोगों को नहीं पढ़ना कुछ है। लोग क्या, कुछ ही लोग ही हैं, सब 8 ही बच्चे हैं, कोई कुछ लोग क्या मतलब। चलो अच्छा, in numerical number 1 let us discuss numerical number 1. Let me switch my camera here. So what is our question number 1? I got a message, not from Arey, I got a message of class 10th only. What do you want to say, ma'am? Today there's a lot of problem in my area. Neeru Srivastav, who is Neeru Srivastav? मैम आदर्शिता। She always has an excuse. उसकी वजह से मैं क्लास लेती हूँ गूगल मीट में, else I am comfortable with Zoom. I might take a on Geo Meet. चलो कोई बात नहीं. So two bodies of equal masses are placed at a height h and 2h. Find the ratio. Find the ratio of their gravitational potential energy. Just a जियो minute. Geo Meet. Geo Meet कहाँ से दिया? चलो उधर जाके लेते देखो. Take your car in your hand and go that side. चलो. Okay, so we will see. We will look here. Question number 1. It's ऐसे question 2 marks में आते हैं generally. Okay. So what is happening that there are two bodies, एक का mass, equal masses, m and m. One is at height h and second is at height 2h. Is it visible? यस मैम। Okay. मैं ये क्या दोपहर की क्लासेस कैसे बॉयज पढ़ेंगे, गर्ल्स नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ है क्या? नो मैम। लग रहा है मुझे। अभी मैं सुनील सर से शिकायत करूंगी, सब लोग डांट खाओगे और क्या। सुनील सर सही लगते हैं तुम लोगों को, सही है सर वो, ठीक है। एंड ग्रेविटी इज इक्वल इन बोथ केसेस। नाउ व्हाट इज द gravitational potential energy of one? What will be? Tell me. What will be GPE of one? What is the formula of GPE gravitational of potential 1 मैम energy? What is the MGH। formula for MGH? So here MGH is MGH only. We will keep it like this. Here MGH is M, G and 2H, right? Now we have to find the ratio. So ratio of GPE1 upon GPE2. What it will be? MGH upon MG2H. H cancel, G cancel, M cancel. It will be 1/2 1/2 1:2. ठीक है, ठीक है, समझ में आया ये? यस मैम। Arunesh, what is the formula for potential energy? मैम यस बताओ। अभी नहीं बताएगा, असीम बताएगा और अरुणेश will tell you. What happened, baby? वहां जाती, वहां आएगी आवाज, इधर नहीं आएगी। चलो, who will tell me the formula? I don't know the formula for potential energy. What? पोटेंशियल एनर्जी का Expression. What is the expression for potential energy? U equals MGH। Arunesh. यस मैम। Answer, beta. U equals to MGH। Now you know. And what is the formula for kinetic energy, Arunesh? मैम हाफ mv स्क्वायर। And what is the expression for kinetic energy? One and the same thing. √2m। अरे बाप रे, formula and expression is one and the same thing. Yesterday also I have told you. What is the formula for kinetic energy? हाफ mv स्क्वायर। And what is the expression for kinetic energy? हाफ mv स्क्वायर।
Okay, now you know this? Yes, ma'am. Thank you. Now, how will we solve question number 2? Please read. Arunesh will solve. Just give Find the it to me. gravitational potential energy of 1 kg mass kept at a height of 5 meter above the ground. Calculate its kinetic energy when it falls and hits the ground. So Take what is G equals to 10 meter per second square. what is G basically? What is small g? What do we understand by small g? Hasim? Small g. Yep. G means G for grapes. G for giraffe. G for what? Gravitational. What do you understand by G? G for giraffe, G for goat, G for gun. G for gravitational. What gravitational? G means acceleration due to gravity. ठीक. G is acceleration due to gravity. Avi? Avi? Avi, what do you understand by G? अब शायद उसका आवाज नहीं आ रहा। Arunesh, what is G? Acceleration What is due to denoted by gravity. small g? Acceleration due to. Now don't forget. So you have M, you have G, and you have H. M is 1 kilogram, G is given, M is given, and H is given. So you will multiply all three. Multiply, what is the answer you will get? This can be done orally only. And 50 joule first. And second पहले is बताओ क्या क्या 50. मल्टीप्लाई किया 1 इंटू मास की जगह 1 1 into इंटू 5 1 into 5 into 10. 10. Okay. So you get 50 joules. Asim, read question number 3 and explain. Avi has written something. Avi has written something in the chat box. तो गूगल मीट पे ही तो ले रहे हैं. गूगल मीट पे ही तो क्लास है ना. Okay. रहने दो, कोई बात नहीं. चलो अक्षय, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो एंड ऑडियो. मैम मेरा मोबाइल चार्जिंग में लगा है उल्टा. मैम उल्टा भी लगा है और चार्जिंग में भी लगा है. तो पता नहीं थी कि 3 o'clock पे क्लास है. 12 से 3 चार्ज नहीं हो पा रहा था फोन. मैम मेरे भाई की भी लगती है ना. हो हाउ टू मैनेज इट समहाउ ना. एवरी डे द क्लास इज गोइंग टू बी एट मैम 3 तो मैं आप जब भी बोलती हूँ ऑन तो कर लेता हूँ ना वीडियो. मैम अभी मैम नहीं है चार्जिंग. अभी खाना रह गया ना. दैट्स ओनली रिमेनिंग. ओके अरुणेश, क्वेश्चन नंबर नहीं, असीम बता रहा था ना क्वेश्चन नंबर 3. असीम, A box of weight 150 kgf has gravitational potential energy stored in it equal to 14700 joule. Find the height of the box above the ground. हाँ तो इसमें क्या करेंगे भाई. इसमें U इक्वल्स टू mgh लगाना है. U इज गिवन टू बी 14700. M की जगह क्या रखे, G की जगह क्या रखे, H की जगह सॉरी क्या रखे, और निकालना क्या है, हाइट ही निकालनी है. तो हाइट की जगह हाइट रख देंगे. अब M और G की जगह क्या रखें बताओ. G भी गिवन है. बताओ भाई. kgf no kgf 150. 150 kgf रख देंगे. मैम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो लेंगे.
9.8. अच्छा चलो 9.8 रख दिया। और और मैम वैसे क्या करना है मैं अभी तक हम समझ हाइट नहीं की पाया। जगह एच रखेंगे, हम हाइट की बेटा जगह जब H लेट रखेंगे। आओगे ना 15 मिनट तो ऐसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। हम न्यूमेरिकल्स हाइट की कर रहे हैं जगह H अनसॉल्व्ड पेज नंबर 41 पे। अक्षय तो बैटमैन के जैसे पढ़ रहा है हाँ? अपसाइड नहीं डाउन। मैम। और क्या, इफ योर फोन इज अपसाइड डाउन ऑब्वियसली यू आर अपसाइड डाउन टू सी इट। यू आर हाँ रीडिंग मैम। लाइक, है ना। Akshay is the Batman of our class. The cool stud. He doesn't want to study. He is just like, I'll do what I will do. हम फर्स्ट पे 150 रख मैम देंगे। मल्टीप्लाई में 150, 9.8. चलो 150 रख देते हैं, कह रहे हो तो। अब तो H मैम को फिर सब्जेक्ट बनाएंगे, मैं नहीं जानती। I am doing what you are telling me to do. If it's wrong, it will be on you, and it's being recorded, so it will be your fault. यस मैम। So what will we do now? फिर मैम इसको नीचे ले जाएंगे, जिसको मैम डिवाइड कर देंगे, डेसिमल मल्टीप्लाई हटाएंगे, जीरो हटाएंगे सबसे पहले, नीचे है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 470 आएगा। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मैम 150 को 98 से। नहीं करते हैं ऐसे बेटा, ऐसे कभी ना करा करो। पहले जीरो जीरो कैंसिल करो, मतलब पॉइंट हटा के नंबर छोटे करने। फर्स्ट वी शुड रिड्यूस इट, ओके। यस मैम। अब जरा 49 की टेबल सुनाओ मुझे। 49 वन जा 49, 49 टू जा, व्हाट इज 49 टू टाइम्स? 98 98। 49 थ्री टाइम्स? 47। 147 147। 147। अभी ये कुछ यहाँ पे दिखा कि 49 से कट कर सकते हैं? यस मैम। 49 twice and 49, 147 is 3 and 0 0, right? यस मैम। Now we will, अभी कभी भी इतना करने के बाद इसमें और गुचर पुचर करके do not reduce it now, इसको फिर से cleanly लिख लेंगे यस मैम। and then we will reduce. ये 150, 300 का half is 150. Then again we will write it clearly and it will come to be as 10 meter, which is our answer. यस मैम। अभी देखो, अगर तुम्हें टेबल नहीं आती होगी 49 की, कम से कम कुछ तक तो आनी चाहिए, बहुत ना आए 10 तक तो 5 6 तक तो आनी चाहिए। वो मुझे आती थी तो मेरे लिए इजी था, वरना तुम लोग ये मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो इट विल टेक मैम 5 6 तक आपको मतलब क्या है? 49 टेबल बेटा 5 6 तक तो आनी चाहिए। हाफ टेबल याद करो। देखो 25 तक की टेबल पूरी आनी चाहिए, 20 तक की टेबल नहीं, 25 तक की टेबल पूरी आनी चाहिए, और 50 तक की टेबल हाफ या कम से कम फर्स्ट 3 तो आनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? लेकिन हमें तो अभी 10 तक की टेबल ही आ जाए बहुत बड़ी बात है। क्यों? चलो क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें बताओ, मास दिया हुआ है ये, हाँ 5 हाइट दी kg हुई मैम। है, 10 मीटर। और हाइट कितनी है? 10 मीटर टू 4 मीटर। तो उसने कितनी हाइट करी है? उसने तो 6 मीटर ट्रैवल करा है ना। 6 मीटर ट्रैवल किया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डायग्राम बनाए हम आ गए, क्या? यस मैम। हम समझ गए। ये यहाँ से यहाँ गिर रही है 5 मीटर की, वो 5 किलो की बॉडी। लॉस एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे पहले निकालो कितना आएगा mgh। बताओ यहाँ पे mgh ओरल बताओ। m है 5 किलो, g लगता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट 10, 10 इंटू 5 इंटू 10, 500 जूल है यहाँ पे एनर्जी। 500 यहाँ पे कितनी एनर्जी है? 300 जूल। u 300 जूल कैसे? हम
मैम और वहाँ से वहाँ तक आंसर मत फिक्स नहीं देखो, किया जो जाता। पूछ रहा है वो बता। मैम आंसर नहीं देख के कह रहे मैम, कैलकुलेट हाँ, तो करके बता 300 रहे। नहीं आएगा। mgh, यहाँ पे 4 मीटर पे कितनी एनर्जी है उसके पास, U इक्वल्स mgh। मैम 200। 200। अब लॉस कितना हुआ उसका एनर्जी का, U का? 300। 300 जूल्स। 300। हाँ हाँ, तो 300 जूल्स। बात समझ में यस आई? मैम, जूल। और टोटल एनर्जी बॉडी में कितनी होगी, यहाँ पर आए यहाँ पर आए, एट एनी इंस्टेंट टोटल एनर्जी कितनी होगी? आंसर तो दिया है, होगी कितनी है बताओ अभी? यस मैम। बताओ भाई, टोटल एनर्जी कितनी होगी और क्यों होगी? एट एनी इंस्टेंट व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी? Ma'am, at any instant, ma'am, total energy possessed by the body is 500 joule. ओके, अभी you also don't know, you are telling me you have solved all the question. Yes, ma'am. हाँ, so what will be the total energy possessed by body at any instant? Ma'am, 500 joule. How come? Ma'am, uh, we saw that the potential energy at the height of 6 meter is no, ma'am. The potential energy at the height of 10 meters, 5 into 10 into 10 equal to 500 joule, and ma'am, जी, the potential energy equal to highest point equal to total energy possessed by the body. क्यों? Why? Ma'am, because there is no kinetic energy and total mechanical energy is always the same. हाँ, ये बोलो तो असीम, Yes, ma'am. total mechanical energy. Mechanical energy is the summation of Ke plus Pe. So total mechanical energy remains constant always. Okay. So at the highest point, its Ke will be 0. And at any instant, जब भी Pe कम हो जाएगा, तो वो Pe किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? Ke में। पर टोटल तो भाई, एक बड़ा भाई है, 2 भाई हैं जुड़वा। अब अगर मम्मी ने एक कोई एप्पल्स दिए या 2 एप्पल इसको दे दिए, 3 एप्पल इसको दे दिए, लेकिन घर में तो 5 एप्पल रहे। समझ में आई मैम बात? मेरे को आधा आधा कर देंगे। हैं? आधा आधा नहीं कर देंगे, किसी को भी कितनी में एनर्जी देंगे, पर रहेगी तो कांस्टेंट एनर्जी ना। ऑफ कोर्स मैम। ऑफ कोर्स, चलो ऑफ कोर्स अच्छा वर्ड है, सीख जाओ तुम लोग, ऑफ कोर्स। 23 क्वेश्चंस हैं, कैसे करोगे 23 क्वेश्चंस? चुटकी बजाते। चुटकी बजा के क्वेश्चन होंगे। ओहो, कैलकुलेट द जिन है अभी। हाइट। हाँ, हम अलादीन जिन है अभी, जिन चुटकी हो जाएगा, हो गया। अभी तो कर चुका है, अभी कह रहा है कि अभी ने कर लिया है। यस, अभी मैं आपको प्लीज फोटो भेज दूं? हाँ यस बिल्कुल, मैम। मैम photo- मैंने भी भेज दिया, मैं भी कर चुका हूँ। क्या ये न्यूमेरिकल्स? आपको मैंने फोटो मैम भेज दिखा दिया, रहा। वो देख न्यूमेरिकल्स लीजिए कहाँ मैम। हाँ मैम, एक चीज पूछनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, फिजिक्स की प्रोजेक्ट फाइल कौन सी मैम? फाइल कहाँ अरे बनानी थी यार? लैब मैनुअल बनाना है, वो बन जाएगी, वो बनी रखी है, मुझसे तो 12 मैम जो पेजेस हॉलीडे लिखने हैं होमवर्क के तुम। मार्क्स आप दे रही है ना, क्योंकि वो आपको भेज दिया मैंने। धन्यवाद, आगे पढ़े अब। मैम ये मैम पक्का मिल जाएंगे मार्क्स, मतलब देख लिया ना आपने? हाँ, हम तुम्हें 20 दे देंगे फाइनली, परेशान ना हो, सीधे पढ़ो। अब मैम उनको फ्राइज खाने। मैम क्वेश्चन पढ़ लें, हो गई इम्पोर्टेंट बात। मैम, अभी तो आपने मुझसे बोला क्वेश्चन दिखाओ, मैम दिखा रहा हूँ। वो भेज देना सब पिक्चर क्लिक अच्छा करके, ओके ठीक है मैम, भेज दी ना? थी मैंने। अच्छा सुन लो भाई, नाउ यू हैव टू फाइंड द हाइट। अगर इसी यहाँ होगे तो मैं वॉल्यूम कम कर दूंगी, फिर उधर जाओ, उधर जाके देखो। सो height through which a body of mass 0.5 kg is lifted if the energy spent in doing so is 1 joule.
अब एनर्जी दे रहे हैं, U गिवन है, W वेट मास गिवन है, G गिवन है, H निकालना है। तो ये हो जाएगा ना, H इक्वल्स टू U अपॉन mg, U इक्वल्स टू mgh, तो H इक्वल्स टू U अपॉन mg। You can do it now. Yes, sir. ओरल क्वेश्चन है ये अभी। एक बॉय है who weighs 25 kilograms. He goes from first floor to at a height of 3 meter to third floor at a height of 9 meter. What will be the increase in gravitational potential energy? तो 3 मीटर पे उसकी U क्या होगा? 25 into 3 into 10. What will be the answer? 25 into 3 is 75. 75 into 10 is 750. भैया 25 की टेबल याद कर लो। 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, खत्म। 225 अच्छा। तो सबको आनी चाहिए ना ये बेटा। 25 की टेबल 25 3 सा कैलकुलेट कर रहा है असीम बैठ के। इस विजिबल ऑन हिज फेस, ही इज मल्टीप्लाइंग 25 to 3, है ना? You were doing that, no? I can see it on his eyes. I can read his eyes from such a small screen that he is multiplying 25 by 3. ऐसे मैम करोगे तो फिर तभी कोई। मैम आपके अंदर के सुपर पावर्स है। और क्या, तुम लोग को पढ़ा पढ़ा के सुपर पावर्स आ गए। तुम बैटमैन हो, मैं वो हो गया। को हर चीज ट्रेन कर दीजिए, हम भी के सर को बोलेंगे सर आप पेड़ा देख रहे हैं। I am Captain Marvel. I can do anything. मैम के सर हर समय पता नहीं पेड़ा येड़ा पता नहीं क्यों करते हैं। तो वही हम भी बोलेंगे सर आप पेड़ा खा रहे हैं, हमने भी देखा। Akshay, please concentrate now. So what now? What will be the potential energy when he reaches 9 meter? मैं भी आपकी आंखों में देख के बताने वाला हूँ सर, प्लीज दीजिए। 25 into 9 into 10, 25 9 से 225, 2250, 2250 में से 750 माइनस होगा तो आएगा 1500. That is the difference of the energy he possessed in first floor and at third floor. ये करके दिखाने मुझे आ रही है बात समझ में। और मुझे ऑडियो विजुअल असाइनमेंट नहीं मिल रहा और मैं बता रही हूँ, मैं अपने फोन में मार्क्स चढ़ा के डिलीट करती हूँ वो। तो मुझसे कहना मत कि मैम मेरे इतने नंबर कम क्यों है, उसको 17 क्यों दिए और मुझे 16 क्यों दिए और मुझे 15 क्यों दिए। ऐसे मेरे से बहस नहीं होनी चाहिए। मैम हमारा आज का क्या होमवर्क होगा? आज का ही न्यूमेरिकल सॉल्व करके भेजना है। ओके मैम। डिस्कस कर रहे हैं, सारे कॉपी में सॉल्व होने चाहिए। कहीं करो, पन्ने फाड़ के कॉपी में लगाओ, आई डोंट केयर। मुझे कॉपी में एक जगह कंपाइल्ड मिलना चाहिए। तुम पोछे में लिखो, कपड़े में लिखो, कागज में लिखो, अपनी टी शर्ट में लिखो, वहां कॉपी में लगा देना बस। ठीक है, ठीक है, जरूर मैम। हाँ। अक्षय को बड़ी मजा आती है सब फालतू बातें में जैसे करते हो। अक्षय एकदम जाग जाता है, ऐसे सोता रहता है। So there is a vessel which contains 50 kilograms of water and is placed at a height of 15 meters. So we are given mass, we are given height, gravitational potential at energy at ground to be 0. What will be the gravitational potential of water in the vessel? कुछ नहीं, 50 into 15 into 10. What is 15 5s? 75. आपका मतलब क्या है? कुछ नहीं, 15 into 15 into 10. और क्या, m into g into h, यही तो करना है। अच्छा ठीक। क्या कुछ नहीं, 15 5 75 and 2 0 75 0 0। आंसर आ गया। अब करो, जो ना समझ में आए वो पूछो। अभी हम क्या करें? इट्स सो इजी। अभी मैं क्या करूं, इजी क्वेश्चंस दिए हैं तो। So there is a man who has a mass of 50 kilograms. He climbs up a ladder of height 10 meters. So you are given mass, you are given height. What is the work done by the man and the increase in the potential energy? When you multiply 5 by 9.8, you get 49. Okay, 49.0 actually. 45 आएगा, 440 का कैरी होगा 8 का, 49 आ जाएगा। So 49 and 1 0 and 2 zeros. एक्सक्यूज मी मैम, न्यूमेरिकल्स की फोटोज ग्रुप पे शेयर करनी है या फिर आपको पर्सनली?
पर्सनल भेजो, ग्रुप पे ना भेजो, वरना सब कॉपी करेंगे, कुछ अपने दिमाग नहीं लगेगा कोई। ओके मैम। कॉपी भी नहीं करेगा, पता है, कोई कॉपी भी करे तो काम हो जाए मेरा, कोई कॉपी भी नहीं करेगा। इतने लथार्जिक बच्चे हो तुम लोग। क्या मैम, क्या कॉपी अच्छा। करना है? देखा देखा, you just saw what happened, just send it to me on मैम आप तो personal। एकदम अभी सही कर रही हैं। अभी मैम अभी प्लीज अभी बता सो रहा दीजिए। है, देखो अक्षय सो रहा है, और मैं जैसे ही कोई मजाकिया फालतू याद बात करूंगी, he'll just wake up। अरे ऐसे मैम सोता है। प्लीज बता दीजिए, मैं करके Shut भेज up। दूंगा। हाँ हाँ, मुझे पता है, कॉपी करवाना तो मैं कॉपी मशीन बन जाओ, बात ही खत्म करो। अपना ओरिजिनल दिमाग ना लगाना, कॉपी मशीन बन जाओ। मैम मैंने एक चीज, पहली बात, न्यूमेरिकल्स नेट से नहीं लिखे हैं, खुद किए, भला उनमें एक एक घंटा लगाया हूँ। 1 घंटे का न्यूमेरिकल ही नहीं था। तो वही ना, भला एक घंटा मैंने लगा दिया मैम, मुझे नहीं आया, लेकिन नेट से समझ गई न्यूमेरिकल्स तो इसीलिए। कॉपी नहीं किए हुए, प्रैक्टिस ही की है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। आगे पढ़े। मैम आज आप शाम अरे में ये क्लास बहुत मैम मैसेज आप भेज मुझसे क्यों रहे, परमिशन अभी ले रही बाद हैं? में मैसेज भेजना भाई, भेजे ओके पड़े मैम। हैं। पूरा मेरा फोन वाइब्रेट हुआ जा रहा है। ठीक है, सो देयर इज अ रो रहा है अच्छा, मैम वर्क बेचारा। डन। अरे भाई, इसीलिए गर्ल्स का होना जरूरी है, कोएड इसीलिए पढ़ाना चाहिए, मैम बॉयज आ नहीं, जाते सब। गर्ल्स गर्ल्स होती तो स्मृति आपका दिमाग खा जाती। मैम ऐसा क्यों नहीं हुआ, स्मृति, मैम वैसा क्यों हुआ, स्मृति मैम ये क्यों हुआ? स्मृति का तुमसे दिमाग लाख नहीं गुना अच्छी है। और ए भाई लाख अब नहीं, बहुत करोड़ों, बेइज्जती हो गई। मिलियन एंड ट्रिलियन टाइम्स। शट अप नाउ। यस मैम। ओके, अब पढ़ ले प्लीज प्लीज। 8 क्वेश्चंस डिस्कस हुए, एटलीस्ट 10 तो लेने दो। जरूर मैम, जो और कर लेते। तो अरे बाप। So what is the work done by the man and what is the increase in potential energy? भाई वो सीढ़ी चढ़ रहा है, ठीक है, देखो सीढ़ी चढ़ रहा है, यहाँ पे तो 0 है एनर्जी उसकी, और यहाँ पर उसकी जो फाइनल होगी, फाइनल कितनी है, 50 into 10 into 9.8, that is 4900। तो 4900 माइनस 0, तो 4900 जूल ही आएगा, ठीक है। और वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। हम लोग ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू हाँ इंक्रीज इन मैम पोटेंशियल पढ़ा था एनर्जी, पढ़ा था। ये देखा था। वर्क डन ऑन द बॉडी इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, बस बात खत्म। चेंज, एक्चुअली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, इसको चेंज लिख दो, बुक वालों ने सब गलत लिख रखा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए ना, तो वो भी 4900 जूल्स आ जाएगा। चलो फिर 9th क्वेश्चन, एक ब्लॉक ए है, उसका वेट 100 न्यूटन है, ओके, उसको एक स्लोप पे पुल कर रहे हैं 5 मीटर लेंथ पे। अगर ये 5 मीटर है तो उसकी हाइट कितनी हो गई, अच्छा गिवन है 3 मीटर। तो वर्क डन कितना हुआ बताओ भाई, यहाँ पे थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा कितना आएगा बताओ, कौन बताएगा। ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइट, ये है बेस। तो हमें पी और एच वाला कौन सा रिलेशन होता है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हरी हर हरी बोले, बोल। हर हर बोले पढ़ा है मैंने, ठीक है। ये तो अब हमें पी बाय एच, तो ये है हमारा, तो पी बाय एच होता है साइन थीटा, साइन थीटा इज ए, मैम ए, अरे बोल, ये क्या हो गया, हाँ 5/3, ठीक है। लेकिन हमें तो कॉस थीटा चाहिए, साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट करो भाई। अरे ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया एकदम से, अभी तक ओरल क्वेश्चन आ रहे थे, वैसे ओरल ही है। अब इसका स्क्वायर कर लो और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दो, आ जाएगा, उसमें क्या है। या एक और तरीका है, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए, ये 4 मीटर होगा और सीधे बी बाई एच लगा दो, कॉस थीटा हो जाएगा हमारा बी बाई एच, बी बाई एच हो गया हमारा 4/3, और वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ हो गया हमारा 100 न्यूटन, एस हो गया हमारा 4, और कॉस थीटा हो गया हमारा 5 अरे बना रहे हैं फ्राइज यार, जब देखो 11 पे है, 11 पे देखो 1 1 पे, जब 1 2 पे आएगी तभी बनाएंगे। सो अभी हम लोग क्या रखेंगे,
100 into 5 into cos थीटा। अब बताओ क्या है आंसर? करो सॉल्व, सब तो मैंने सॉल्व कर दिया, आप कुछ भी करो। या तो देखो साइन थीटा निकालो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉल्व कर लो, 4 मीटर आ जाएगा। तो बेसिकली तुमको स्क्वायर माइनस करना ही पड़ेगा, पर ये पता होना चाहिए 3 5 4 12 13 5 6 8 10 ये रेशियोस पता होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ऑफ कोर्स मैम। ऑफ कोर्स। देखो पहले में तो अलोंग द स्लोप पूछा गया है, जब अलोंग द स्लोप पूछा गया है तब हम सीधे सीधे अलोंग द स्लोप ही करेंगे, ठीक है। तब हम लोग 5 into 100 कर देंगे सीधे सीधे, 5 into FS कर देंगे सीधे सीधे, cos थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि अलोंग द स्लोप पूछा है। तो 500 जूल आ गया आंसर। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? ब्लॉक ए की सॉल्व करो, बताओ। मैथमेटिक्स है यहाँ पे, हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाने बैठे, ट्रिग्नोमेट्री। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पता चला? नहीं पता चला? भैया इसने कितनी हाइट कवर करी? इसने कितनी हाइट कवर करी? 3 हाइट कवर करी ना, 3 मीटर की। तो mgh लगाओ 100 into 3। ये mg दिया हुआ है ना, न्यूटन क्या होता है? न्यूटन mg होता है। तो mg तो गिवन ही है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन इज 300 जूल, और डिफरेंस कितना हुआ? 300 माइनस 500 200 जूल। क्या बच्चा लोग, ठीक है ठीक है, समझ में आया? Stuttering kiddo, did you get anything or not? मैम समझ आया, आप किसी दिन टेस्ट ले लीजिए, उस दिन कर दूंगा। मैं ये सब न्यूमेरिकल्स कर चुका हूँ, ऑफ कोर्स कर दूंगा कब? उस दिन। आपको हम जिस दिन टेस्ट लेंगे। चलो कल ही कल ले लेते हैं, 3 बजे 3:40 मैम। पे तुम्हारी ये क्लास ओवर होती है, 3:40 मैम। हम टेस्ट कर लग देते हैं। 10 लेकिन मिनट्स मैम का और वो स्टेप बाय स्टेप लीजिएगा, जैसे पहले चैप्टर से लेना सारे शुरू कीजिएगा। नहीं नहीं, हम यही एक्सरसाइज देंगे, पहले का देखा ठीक जाएगा, हम ये देंगे। ठीक ओके मैम ओके। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है 1 किलो मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 हाफ m v स्क्वायर। तो हाफ, ये तो यही हो जाएगा, हाफ 1 m की जगह 1 रख दिया, v स्क्वायर 10 into 10। So what it will be? 50 joules। ये लो सॉल्व। ठीक है। If the speed of car is hard, how does it kinetic energy change? अगर स्पीड ऑफ द कार को हाफ कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, स्पीड ऑफ द कार इज हाफ, तो v1 है v1 और v2 है v1/2, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 लिखें अगर, तो हाफ m v1 स्क्वायर एंड हाफ m v2 स्क्वायर होगा। तो हाफ और m तो कैंसिल हो गया, ऊपर आया v1 स्क्वायर, नीचे आया v1 स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सो इसको अंदर ले जाएंगे तो आएगा v1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर इंटू 4। v1 स्क्वायर चेंज हो जाएगा, तो
देखो क्या है, 3/4 इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का निकालेंगे तो KE1 इज हाँ KE2 और 4 अब हम नीचे ले जाएंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज क्वार्टर ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देखो इट बिकम्स 1/4। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टाइप के कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालिए, पहले इतना था अब इतनी हाइट हो गई है, या इतना था अब इतनी वेलोसिटी हो गई, तो व्हाट विल हैपन। ओके, सो द टाइम्स इज अप नाउ। आई हैव डिस्कस्ड 10-12 न्यूमेरिकल्स। इसके बाद के न्यूमेरिकल्स मैं उन्हीं बच्चों के लिए बताऊंगी और उन्हीं बच्चों के लिए है जो पहले के 12 लगाएंगे। जो पहले के 12 नहीं लगा के फोटो भेजे अगर तुम लोगों ने, तो मैं अब नेक्स्ट क्लास में आगे का कराऊंगी, वरना नहीं कराऊंगी, रहने दो। इतना ही कर लो, बहुत सफिशिएंट। यस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैं इसके बाद तभी, क्योंकि ये गेन्ड बाय अ बॉक्स एनर्जी बुलेट क्वेश्चंस होते हैं, दे टेक अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। So if you can't solve these questions and practice these questions, you can't solve these questions. And in the next class, we are going to do conservation of energy. ये आता ही आता है 4 नंबर का। ये जो डेरिवेशन देख रहे हो थ्योरेटिकल, Yes, ma'am. ये 4 मार्क्स का आता है। किसी भी तरीके से आएगा, 3 से 4 नंबर का आएगा, पर आएगा। और अभी जो आपका यूटी होगा उसमें ये आएगा ही आएगा, ये आता ही आता है। क्योंकि अभी मतलब इसको आप कोई टीचर इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, ना इसको ना वर्क एनर्जी थ्योरम को। इसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं, फिर हम लोग मशीन्स पे आ जाएंगे। ठीक है, Yes, ma'am. बाय बाय एवरीवन। Bye, ma'am. बाय मैम। Akshay?